فائل میں دماغ کھپا رہا تھا۔ بلوچ خاندان پر جو کیس کیا تھا اس کے بارے میں بھی کافی تیاری کرنی تھی اور خالد کو بھی جیل سے چھڑوانا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ 3 سے 4 دن وہ جیل میں ہی سڑتا رہے۔ اسی لیے اپنی کمپلین واپس لینے پولیس اسٹیشن نہیں گیا۔ اس وقت وہ اپنے کام میں پوری طرح مگن تھا۔ تبھی فضا دروازہ کھول کر بنا پوچھے اس کے قریب آئی اور آتے ہی اس کی فائل کو ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھا اور خود التمش کی گود میں بیٹھ گئی۔ اچانک ایسی افتاد پر التمش کا دماغ گھوم گیا، مگر سامنے فضا کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر ہزاروں بل پڑ گئے۔ اگلے ہی پل اس نے بازو سے پکڑ کر فضا کو اٹھایا۔ اٹھو یہاں سے، تمہیں بیٹھنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ملتی۔ اس بار اس کا لہجہ بہت زیادہ سخت تھا۔ فضا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بیبی ایسے کیوں کر رہے ہو؟ میں تو ہمیشہ ہی تمہاری گود میں بیٹھتی ہوں۔ ہمیشہ سے نہیں، ہمیشہ سے تم میری گود میں نہیں بیٹھتی، یہ کچھ مہینوں سے ہی تم پر بھوت سوار ہوا ہے۔ ہاں تو تمہاری محبت کا نشہ میرے سر پہ چڑھ چکا ہے، اسی وجہ سے میں تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ محبت کا نشہ یا ہوس کا؟ اس کے سوال پر فضا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہو مجھ سے؟ اگر میں تم سے محبت کرتی ہوں تو کیا تم میری محبت کو ہوس کا نام دو گے؟ میں تمہاری محبت کو ہوس کا نام دے نہیں رہا، تم اپنی حرکتوں سے ہوس کا نام دینے پر مجبور کر رہی ہو۔ جاؤ جا کر سامنے بیٹھو۔ اس نے اپنے عین سامنے رکھی 2 چیئرز میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ آر یو سیریس؟ یہاں پر تمہارے کلائنٹ بیٹھتے ہیں تو کیا میں تمہارے لیے کلائنٹ ہوں؟ فی الحال جا کر وہیں پر بیٹھو اور میرے کچھ سوالوں کے جواب دو۔ التمش میں وہاں نہیں بیٹھوں گی، میری جو جگہ ہے میں وہیں پر بیٹھوں گی۔ وہ دوبارہ اس کی گود میں آ کر بیٹھنے لگی۔ اور تمہیں کس نے یہ جگہ دی ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو فضا اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، سوری، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ اپنا پرس ٹیبل پر رکھ کر اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ریلیکس کرنے کی کوشش کی اور آگے بڑھ کر دونوں بازو التمش کے گلے میں حائل کر لیے۔ مسکرا کر وہ التمش کے مزید قریب آئی۔ وہ گہرا سانس لے کر آنکھیں گھما گیا۔ اچھا بتاؤ، کس بات پر ناراض ہو؟ اس کے قریب ہو کر ہونٹوں کو چھونے ہی لگی کہ التمش نے اپنا منہ پھیر لیا اور ہاتھوں سے اس کی کلائیوں کو پکڑ کر نیچے کیا۔ فی الحال میں نے تمہیں کہا ہے جا کر سامنے بیٹھو، مجھے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ التمش، یہ کس طرح کی ضد ہے؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ اب تو میں نے سوری بھی بول دیا ہے، حالانکہ میری کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ تمہاری کوئی غلطی ہے یا نہیں ہے یہ میں بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا، پہلے جا کر سامنے بیٹھو اور میرے سوالوں کا جواب دو۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم مجھ سے سوال و جواب کرنے پر تل گئے ہو؟ بتاتا ہوں، پہلے جا کر بیٹھو۔ لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ فضا کو اس کے لہجے میں اجنبیت محسوس ہوئی۔ ایسے رویے پر شرمندگی الگ ہو رہی تھی، اسی لیے جا کر خاموشی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہاں پوچھو تمہارے سوال، لیکن جیسے ہی تمہارے سوال پورے ہو جائیں گے میں تمہاری گود میں بیٹھوں گی۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہی وہ دوبارہ اپنی چیئر سنبھال کر بیٹھ گیا۔ پین باکس میں سے ایک پین نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور چھوٹی سی نوٹ پیڈ کھول کر اپنے سامنے رکھی۔ تو بتاؤ، آج سے 1.5 سال پہلے جب تم مجھ سے ملی تو کیا تم مجھے پہلے سے جانتی تھی؟ یہ کیسا سوال ہے؟ میں تمہیں پہلے سے کیسے جان سکتی ہوں؟ میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا اور میں تم پر فدا ہو گئی۔ اچھا۔ اپنے سامنے کھلے کورے کاغذ پر التمش نے ایک لکھا۔ یہ کیا لکھ رہے ہو؟ اسے اس طرح نمبرنگ کرتے دیکھ فضا کو حیرت ہوئی۔ دوسرا سوال، کیا تم بلوچ خاندان کو پہلے سے جانتی ہو؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے تو بلوچ خاندان کا نام ہی تمہارے منہ سے سنا ہے، میں بھلا ان لوگوں کو کیسے جان سکتی ہوں؟ اس کے جواب پر التمش نے کورے کاغذ پر نمبر 2 لکھا۔ تیسرا سوال، تمہارے دادا کا نام کیا ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ فضا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے دادا کے نام سے تمہارا کیا مطلب؟ تمہارا تعلق مجھ سے ہے نا؟ میرا تعلق تم سے ہے، اسی لیے تم سے پوچھ رہا ہوں تمہارے دادا کا نام کیا ہے؟ کچھ پل وہ سوچتی رہی اور التمش کی طرف دیکھ کر اسے گھورتی رہی۔ التمش، یہ ٹو مچ ہو رہا ہے۔ بھلا اس میں کیا ٹو مچ ہے؟ تم میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو اور اپنے دادا کا نام بھی نہیں بتانا چاہتی۔
لیکن تم یہ ساری انفارمیشن لے کیوں رہے ہو؟ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کے تاثرات صاف نمایاں تھے۔ میں نے تم سے ایک سادہ سا سوال کیا ہے، کیا تم سے اس کا جواب بھی نہیں بن پا رہا؟ التمش بغور اس کے چہرے کے پل پل بدلتے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دوبارہ خاموش ہو گئی۔ بولو، جواب دو، اب یہ مت کہنا تمہیں اپنے دادا کا نام ہی نہیں پتا۔ التمش کے طنزیہ لہجے پر وہ تلملا اٹھی۔ میں نے کبھی پوچھا نہیں اپنی دادی سے۔ وہ چاہتی تو کوئی بھی جھوٹ بول سکتی تھی، مگر التمش اس وقت نفسیاتی حالت میں لگ رہا تھا۔ اگر گھر فون ملا کر اس نے دادا کا نام پوچھ لیا تو کیا ہوگا؟ اس کے جواب پر وہ گہرا مسکرایا اور 3 بار ہاتھوں سے تالیاں بجائیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! I am impressed۔ اچھا۔ اس جواب پر اس نے کاغذ پر حرف 3 لکھا۔ اب بتاؤ، تمہارے باپ کا بلوچ خاندان سے کیا تعلق ہے؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں ایک ہی جواب تمہیں 1000 بار دے چکی ہوں۔ میں بلوچ خاندان کو تم سے ملنے سے پہلے نہیں جانتی تھی، اور تم میرے سارے گھر والوں کو بلوچ خاندان سے ملانے کی بات کر رہے ہو۔ اس کے جواب پر التمش نے پین کی مدد سے 4 لکھا۔ تم مجھے اپنے گھر کیوں بلانا چاہتی ہو؟ تاکہ ہم دونوں شادی کر سکیں، لیکن تم تو کہتی ہو تمہارے گھر والے تمہاری لو میرج نہیں کروانا چاہتے۔ ہاں، وہ میری لو میرج نہیں کروانا چاہتے، لیکن اگر تم جا کر ان سے ایک بار ملو گے تو مجھے یقین ہے وہ ضرور مان جائیں گے۔ اچھا، تمہاری لو میرج نہیں کروانا چاہتے لیکن مجھے گھر بلا رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ بھلا کیا خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ کیوں بال کی کھال نکال رہے ہو؟ آخر چاہتے کیا ہو؟ فضا کو غصہ آنے لگا۔ التمش نے کاغذ پر 5 لکھا۔ تمہارا مجھ سے ملنا، میرے قریب آنا، مجھ سے یوں فزیکل ہونے کی کوشش کرنا، تمہارے گھر والوں کا مجھے اپنے گھر بلانا، ان سب چیزوں میں کیا سملیرٹی ہے؟ If I am not wrong، بلوچ خاندان۔ پین کو 2 انگلیوں میں تیزی سے حرکت دیتے ہوئے وہ فضا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ خود سوال کر کے اس نے خود ہی جواب کا اندازہ لگایا۔ اس کی بات پر فضا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کچھ پل شوق کی کیفیت میں وہ التمش کو دیکھتی رہی۔ میں تمہارے کسی سوال کے جواب دے نہیں ہوں۔ دونوں ہاتھ ٹیبل پر مار کر اپنا پرس اٹھایا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ سارے سوالوں کے جواب غلط دے کر گئی ہے محترمہ، لیکن خیر کوئی بات نہیں، ہر مرض کی دوا ہے، پھر یہ تو کوئی چیز ہی نہیں۔ نوٹ پیڈ بند کر کے پین کو اپنی جگہ رکھ کر وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تو ساوری کا معصوم چہرہ، معصوم ادائیں، دلکش سراپا، خوبصورت نشیب و فراز آنکھوں کے گرد گھوم گئے۔ اف، تم سے دور رہنا جہاد کرنے جیسا ہے۔ اگر تمہارے وجود کو پا کر شدید ہو جاؤں تو بھلا میرا کیا قصور؟ ایسے دلکش سراپے کی خوبصورت رعنائیاں تو کسی کا بھی ایمان ڈگمگا دیں۔ میں نے تو پھر بھی نکاح کیا ہے، مجھے تو ہر حق حاصل ہے۔ بہت جلد تمہیں پورے خاندان کے سامنے ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جاؤں گا، پھر اس رات جو ہمارا ملن ہوگا تم سہ نہیں پاؤ گی۔ تم پر میری شدتیں ایسے ٹوٹ کر برسیں گی کہ تم پناہ مانگو گی، مگر ہر طرف التمش ہی التمش چھایا ہوگا۔ دماغ میں مستقبل کو لے کر وہ نہ جانے کتنے تانے بانے بن چکا تھا۔ ساوری، بند آنکھوں کے پیچھے ساوری کے چہرے کو دیکھ کر اس نے ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ یار، مجھے تمہارے ہونٹوں کا جام پینا ہے۔ وہ معصوم سا منہ بنا کر آنکھیں کھولتا واپس فائلز پر جھک گیا تاکہ جلدی جلدی کام نپٹا کر اپنی ساوری کی آغوش میں جا سکے۔ اس کی نرم گرم باہیں التمش کے انتظار میں ہوں گی، میری چھوٹی سی بیوی۔ وہ ہنس کر اپنے ہونٹوں کو انگوٹھے کی مدد سے مسلنے لگا۔ جادوگر نے مسلسل مسکراتے فائلوں پر جھکا وہ جلدی جلدی کام نپٹانے لگا۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ خوبصورت کینڈل لائٹ کی روشنی سے کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی۔ تازہ پھولوں کی خوشبو 400 پھیل کر کمرے کو معطر کر رہی تھی۔ سانسوں میں تازہ پھولوں کی مسحور کن خوشبو اتار کر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس حسین منظر میں کسی کو کھوج رہا تھا۔ تبھی 2 خوبصورت ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ کر کوئی دھیرے دھیرے چوڑے شانوں پر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ احمد شاہ نے اس صنف نازک کی کلائی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ کسی کٹی ہوئی ڈال کی طرح آ کر احمد شاہ کے سینے سے ٹکرائی۔ اپنے سامنے ہی زنیرہ کو سرخ ساڑی کے اندر ملبوس دیکھ کر وہ مانو سانس لینا ہی بھول گیا۔
खूबसूरत नकूश को मेकअप से सजाया गया था। हसीन सरापा किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं था। खूबसूरत नशेबो फराज साड़ी से छलक कर इसके लिए दावते नज़ारा बने थे। उसके खुले मुंह को देखकर जुनैरा के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट फैल गई। अपनी मखरूमी उंगलियों से उसने अहमद शाह की ठोड़ी पे हाथ रखकर उसके मुंह को बंद किया। मुंह तो बंद कर ले। सुर्ख लिपस्टिक से पोशीदा होंठ हिले तो अहमद शाह का दिल धड़कना भूल गया। आप ऐसे, वो बमुश्किल बोल पाया, वरना सांस तो कहीं सीने में ही अटक गया था। क्यों? मैं ऐसे नहीं आ सकती। आ सकती हैं, मगर ऐसे आती नहीं है ना। वो अब सांस लेने के काबिल हुआ, मगर तभी जुनैरा ने अपने हाथ इसके सीने पर रखे। मेरी तारीफ नहीं करेंगे? तारीफ? हाँ तारीफ, मुझे तारीफ करनी है। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वो उसकी आंखों में देखकर खोने लगा। ऐसे करेंगे तारीफ? वो मानीखेज अंदाज में मुंह बनाकर दूर होने लगी तो अहमद शाह ने इसके दोनों हाथ पकड़कर दोबारा अपने सीने पर रखे। मैं तो किसी और तरह की तारीफ करना चाहता हूँ, मगर आप मौका ही नहीं देती। आज मौका दे रही हूँ तो वैसे तारीफ कर दें। वो इठलाकर दोबारा उसके करीब आई। अहमद शाह की शर्ट के बटन पर उंगली फेरते हुए वो न जाने क्या चाह रही थी। ऐसी जानलेवा अदाओं पर वो फिदा हो गया। खुशी के मारे कपकपाते हाथों से उसने जुनैरा की नाजुक कमर के गिर्द हिसार बनाकर यकदम उसे खुद से लगा लिया तो वो हंस दी। आहिस्ता, अब तारीफ करने का कह रही हैं और आहिस्ता भी बोल रही हैं। क्यों? तारीफ आहिस्तगी से नहीं की जा सकती। नहीं, अगर अहमद शाह से तारीफ करवानी है तो वो जानलेवा होगी। मैं चाहती हूँ आप मेरी ये जानलेवा तारीफ करें। सह पाएंगी? वो उसकी आंखों में देखकर सवाल कर रहा था। बिल्कुल। आपको लगता है मैं नहीं सह पाऊंगी? सवाल के बदले सवाल आया। यकीनन। मुझे तो सिर्फ आप ही सह सकती हैं। उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरकर वो शिद्दत से उसके भर भरे होंठों को अपने लबों में दबाकर अपनी शिद्दतें उसके अंदर उंडेलने लगा। और जुनैरा ने भी एक हाथ उसकी गाल पर रखकर दूसरा हाथ गर्दन के पीछे रखा और वो खुद इसका भरपूर साथ दे रही थी। दोनों के होंठ एक दूसरे से उलझे थे। अहमद शाह को यकीन नहीं आ रहा था कि वो यूं इस तरह उसके इस कदर करीब आ जाएगी, लेकिन अगर वो करीब आ गई है तो फिर वो मौके को जाने क्यों दे। इसीलिए शिद्दतें लुटाता वो मुसलसल उसके होंठों का जाम पी रहा था। मगर जुनैरा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो भी बराबर साथ दे रही थी। दोनों के जज्बात एक दूसरे की तर्जुमानी कर रहे थे। यस, आज हम एक हो जाएंगे। आज मैं आपकी तारीफ ही नहीं करूँगा बल्कि आपको अपना बनाऊँगा। इस खूबसूरत वजूद पर सिर्फ मेरा हक होगा। हमारे बच्चे होंगे। मेरे बच्चे पैदा करोगी ना जुनैरा? वो होंठों को छोड़कर जुनैरा की आंखों में देखने लगा। अहमद शाह की आंखों में देखते हुए वो मुस्कुरा दी। आपके बच्चे पैदा नहीं करूँगी तो फिर जीऊँगी कैसे? मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझसे इतना प्यार करें कि हमारे ढेर सारे बच्चे हों। कितने बच्चे पैदा करवाना चाहते हैं आप मुझसे? अहमद शाह के चेहरे को दोनों हाथों के प्यालों में थाम कर वो सवाल कर रही थी तो वो निहाल हो गया। सिर्फ 10? सिर्फ 10? जुनैरा को जैसे मायूसी हुई। क्या हुआ मेरी जान, ज़्यादा है? इससे जुनैरा का ये उदास चेहरा देखा नहीं गया। नहीं, बहुत कम है। मुझे लगा आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हम कम से कम 20 बच्चे करेंगे। मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ दूँ। हम सिर्फ 10 बच्चे पैदा करेंगे, और अगर हम बैक टू बैक बच्चे पैदा करें तब भी इन 10 बच्चों को पैदा करने में 8 साल लग जाएंगे। मैंने सिर्फ तुम्हारे आराम के लिए 10 बच्चों का प्लान बनाया है। मगर अहमद, मैं चाहती हूँ आप मुझे 8 साल बाद भी वैसे ही प्यार करें। हम वैसे ही प्यार करेंगे मेरी जान, लेकिन बच्चों पर रोकथाम लगा देंगे। आपके वजूद से तो मैं एक पल के लिए दूर नहीं रह सकता। वो दोबारा उसके होंठों पे झुकने लगा तो जुनैरा ने अहमद शाह के होंठों पे उंगली रखकर उसे बाज रखा। 10 बच्चों का प्लान बना लिया है और यूं खड़े रहकर सिर्फ होंठों को चूम रहे हैं। वो इठलाकर बोली तो अहमद शाह मजीद फैलने लगा। तुम बस एक बार इशारा दो, मैं बेड पर ले जाकर तुम्हें दिन में तारे दिखा दूं। अगले ही पल वो उसे उठाकर बेड पर ले आया। अपनी शर्ट निकालकर जैसे ही जुनैरा के ऊपर गिर कर उसके वजूद में समाना चाहा, तभी धड़ की आवाज़ के साथ वो बेड से नीचे जा गिरा। आह! बेड से गिरने के बाद उसे बुरी चोट लगी। कराहते हुए उसने आंखें खोली
चोट लगने के साथ ही नींद भी खुल चुकी थी। अपनी बाहों में थामे तकिए को देखकर वो दंग रह गया। तकिया? मेरी बाहों में तो जुनैरा थी। चंद लम्हों में ही वो समझ गया कि वो ख्वाब देख रहा था। अगले ही लम्हे तकिए को खुद से दूर उछालकर वो बेड की साइड से टेक लगाकर आहें भरने लगा। ख्वाबों में आती हो, असल में आ जाएं जुनैरा। ख्वाब में इनके होंठ किस कदर लज्जत आमेज थे। अगर सच में करेंगी तो वल्लाह। वो सोचकर ही मसरूर हो गया, मगर फिर कुछ याद आया। या अल्लाह, मेरे 10 बच्चे कब से इंतज़ार कर रहे हैं। वो रोने के दर पे आ गया। फिक्र मत करो मेरे बच्चों, तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ को मनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द तुम एक एक करके 3 साल में 4 यहाँ मौजूद होगे, पूरे 10, फिर बस। जुनैरा, आपको इसके लिए जल्दी मानना होगा। जितनी आप देर करेंगी उतना ही हमारे बच्चे इंतज़ार करेंगे, और मैं अपने बच्चों को इंतज़ार नहीं करवा सकता। वो संजीदगी से आने वाले मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहा था। शाम के वक्त जब वो हवेली आया तो हवेली में गैर मामूली चहल पहल देखकर हैरान रह गया। ये सब क्या हो रहा है? इधर उधर देखते हुए उसने मुलाजमों से सवाल किया। अरे अल्तमश बाबा, आपको नहीं पता शबाना बेटी माँ बनने वाली है। इस हवेली का वारिस आने वाला है, इसीलिए साईं ने पूरे गांव को दावत दी है, और आज वो सबके सामने ये अनाउंस करेंगे कि इनके खानदान का वारिस आ रहा है। ओ अच्छा। पल भर में ही उसे सारा मामला समझ आ गया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। मुलाजिम का शुक्रिया अदा करके वो अंदर आ गया, जहाँ बैरूनी हिस्से के मुकाबले अंदर कुछ ज़्यादा ही चहल पहल लगी हुई थी। घर की तमाम औरतें पूरी तरह तैयार नजर आ रही थीं। नाज़ली के चेहरे पर आज मुस्कुराहट थी। वही सावरी नीले कलर की पाँव को छूती फ्रॉक में आसमान से उतरी कोई परी ही लग रही थी। लंबे घने खुले बाल कमर पर बिखरे थे। खूबसूरत नकोश को हल्के हल्के मेकअप से सजाया गया था। चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट, आंखों में खुशियों के जुगनू रक्स कर रहे थे। नाज़ली के साथ खड़ी वो न जाने क्या बात कर रही थी। दोनों एक दूसरे से महवे गुफ्तगू थी, मगर अल्तमश की नज़रों का मरकज़ तो सिर्फ उसके सुर्ख होंठ थे। इतनी गहरी लिपस्टिक क्यों लगाई है उसने? अल्तमश के तन बदन में आग लग गई। बिलाशबा वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके इस हसीन सरापे को यहाँ के दूसरे लोग भी तो देख रहे होंगे। वो न जाने इसके बारे में क्या ख्याल राय देते होंगे। किस किस की नज़र उसके खूबसूरत नशीबो फराज और होंठों पे गई होगी। लंबे लंबे डग भरता वो सावरी के करीब आया। आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। अभी जाओ और इन होंठों से लिपस्टिक उतारो। क्या हुआ? सावरी ने हैरत से उसकी तरफ देखा। जो बोल रहा हूँ वो करो। इसकी बात पर वो मुंह बसोर कर रह गई। जाओ कर लो, नाज़ली ने प्यार से समझाते हुए उसका कांधा थपथपाया। ठीक है। वो चुपचाप मरे मरे कदमों से अंदर की जानिब बढ़ गई। जुनैरा ने उसकी इस हरकत को बगौर नोट किया। इसे पहले ही शक था कि वो सावरी में इंटरेस्ट ले रहा है, मगर वो तो अपनी मोहब्बत किसी और को बता चुका था। फिर इस तरह खालिद बलोच की बेटी में इंटरेस्ट लेना उसे कुछ खास हजम नहीं आ रहा था। खैर, वो तो अहमद शाह के बारे में अल्तमश से बात करने वाली थी। इस मामले को बाद में देखेंगे, यही सोचकर वो अल्तमश की तरफ आई। सुनो अल्तमश, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ माँ, मैं आपसे बात करता हूँ, बस अभी फ्रेश होकर आ जाओ। ठीक है, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, मगर दिल में भरपूर इरादा था कि आज सावरी के होश अच्छी तरह ठिकाने लगा कर रहेगा। जैसे ही अरीबा को होश आया, उसने आहिस्तगी से आंखें खोलकर शान की तरफ देखा, जो शर्मिंदगी से सर झुकाए उसके ऊपर झुका था। मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद पर से काबू खो बैठा। अरीबा ने उसे खुद से परे धकेला। तुम्हें माफ़ कर दूं? पागल हो गए थे तुम। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं रुक रहे थे। कोई जिन आ गया था तुम में। ऐसा कौन सा जुर्म सवार हो गया था जो मेरी आहें तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच रही थी? मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं उस वक्त ऐसी हालत में नहीं था कि तुम्हारी कोई बात सुन सकता। जब तुम ऐसी हालत में नहीं थे, इस कदर परेशान थे, तो तुमने मेरे साथ मुबाशरत क्यों की? जानते भी हो मैं इस वक्त किस कदर तकलीफ़ के अंदर हूँ। वो वाकई बहुत तकलीफ़ में थी। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मगर मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। तुम जानती हो मैं तुम्हारी तकलीफ़ नहीं देख सकता। तो फिर तुम वो तकलीफ़ बताओ जो तुम्हें तकलीफ़ दे रही है। मैं वो भी नहीं बता सकता। फिर मेरे करीब आने की भी ज़रूरत नहीं है।
वो उसे खुद से दूर करके उठ खड़ी हुई। टांगों के दरमियान शदीद तकलीफ हो रही थी, उठकर चलना मुहाल हो गया, मगर फिर भी वो गिरते पड़ते सोफे पर आकर लेट गई। देखो, तुम आकर बेड पर लेट जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना। ये बाद में देख लेंगे, मगर फिलहाल तुम यहाँ और बेड पर लेट जाओ। यहाँ तुम्हें ज़्यादा आराम मिलेगा। मैं दवा लगा देता हूँ। मुझे तुम्हारी दवा की ज़रूरत नहीं है, मुझे उस वजह की ज़रूरत है जो तुम्हें परेशान कर रही है। देखो अरीबा, मैं तुम्हें फ़िलहाल कुछ नहीं बता सकता। अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो इसमें कोई मसलहत है, लेकिन आज जो तुमने मेरे साथ किया है इसमें मुझे कोई मसलहत नज़र नहीं आ रही। तुम जानते हो तुम पूरे पागल हो चुके थे, एक जुनून तुम्हारे सर पर सवार हो गया था, जैसे तुम किसी का बदला ले रहे हो मुझसे। नहीं, मैं तुमसे बदला नहीं ले रहा था, ये मेरी मोहब्बत है। ये तुम्हारी मोहब्बत है? वो सफाई पेश करने लगा। ये वहशीपन मोहब्बत है? वो भड़क उठी। ठीक है, तुम जो भी समझो, लेकिन फ़िलहाल उठकर बेड पर लेट जाओ। वो मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं यहाँ तक बमुश्किल आई हूँ, वो चिल्ला उठी। ठीक है। शान ने आगे बढ़कर इसके वजूद को बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया। यहाँ आराम करो, मैं दवा लेकर आता हूँ। तुम दवा लगाकर सो जाना, और जब तक तुम्हारे ज़ख्म ठीक नहीं होते मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। मेरे करीब तब तक आने की ज़रूरत नहीं है जब तक मुझे वजह नहीं बताओगे। अरीबा ने भी ज़िद पकड़ ली थी। देखो, ज़िद नहीं करो, मैं तुम्हारे करीब आऊँगा क्योंकि ये मेरी ज़रूरत है। और मेरी ज़रूरत का क्या, तुम्हारी ज़रूरत भी मैं ही हूँ। इसने तो जैसे बात ही ख़त्म कर दी। अरीबा का दिमाग घूम गया। मैं तुम्हारी ज़रूरत हूँ और तुम जब चाहे अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हो। इसका मतलब मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं हूँ, तुम मेरी मोहब्बत हो अरीबा। बात को गलत रुख नहीं दो। अगर मोहब्बत होती तो तुम अपनी तकलीफ़ें मुझसे शेयर करते, ना कि यूँ वहशीपन का मुजाहिरा करते। उसने तो जैसे कसम खा रखी थी इस वक्त शान की किसी बात को नहीं समझेगी। ठीक है, तुम्हारी हर बात को सच मान लेते हैं। फ़िलहाल तुम आराम करो, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। वो दवा उसके करीब रखकर बाहर चला गया। पता नहीं इनको मुझसे क्या मसला है। कितने महीनों बाद मैं आज तैयार हुई थी, मगर मजाल है मुझे ये सजने संवरने का मौका दे। ईद पे भी हम लोग तैयार नहीं हुए थे। कमरे में आकर वो चीज़ों को उलट पुलट कर अपना गुस्सा निकाल रही थी। मुझे अपने होंठ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। देखो ना, मैंने रेड लिपस्टिक लगाई है। आईने के सामने खड़ी होकर वो ख्यालों में ही अल्तमश से मुखातिब थी, अपने होंठों को देख रही थी। इतने वक्त बाद उसे अपने होंठों को रंगने का मौका मिला था, मगर अल्तमश को ये अच्छे ही नहीं लगे। वो उन्हें टिश्यू की मदद से साफ करना चाहती थी, मगर बार बार हाथ होंठों तक ले जाकर वापस खींच लेती। मेरा मन नहीं कर रहा, टिश्यू फेंक कर बेड पर आ बैठी। मगर इस वक्त अल्तमश कमरे में आया। तुमने अभी तक अपने होंठ साफ नहीं किए? मुझे ये अच्छे लग रहे हैं, आप देखें ना एक बार। आपको क्या हो गया है? देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। उसने अपने होंठों को गोलाई की शेप में करके अल्तमश की तरफ किया। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, दिल चाह रहा है इन्हें चूम लूं। वो बेखुद सा होकर उसके करीब आया। जब इतने खूबसूरत लग रहे हैं तो फिर मुझे साफ करने का क्यों बोल रहे हैं? वो कमर पर हाथ रख कर रैन उसके बराबर आ खड़ी हुई। सावरी, मुझे मजबूर नहीं करो। वो जानती थी इस वक्त वो अल्तमश का सब्र आजमा रही है। मैंने आपको मजबूर नहीं किया, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपने होंठों को साफ करूं। आप जानते हैं कितने वक्त बाद मैंने ये लिपस्टिक लगाई है? सावरी, बाहर सब लोग तुम्हें घूर घूर कर देख रहे हैं। मैं तो इनकी तरफ नहीं देख रही ना, मेरे दिल में तो सिर्फ आप हैं। उसने तो जैसे बात ही ख़त्म कर दी। तुम इनकी तरफ नहीं देख रही, लेकिन उनके दिल में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। तुम इनको साफ कर रही हो या मैं अपना तरीका अपनाऊं? अल्तमश की धमकी पर वो माथे पर तेवरियां ले आई। हमेशा मुझे धमकी देते हैं, कभी मेरी बात नहीं सुनते। वो धप से बेड पर बैठ गई। अभी भी अपने होंठों को साफ करने का कोई इरादा नहीं था। गहरा सांस लेता अल्तमश उसकी तरफ बढ़ा। अगले ही पल सावरी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने पैरों पर खड़ा किया और एक हाथ गर्दन के पीछे बालों पर रखकर सावरी के बालों को नीचे की तरफ झटका दिया तो उसका चेहरा ऊपर हो गया। जैसे ही उसका चेहरा अल्तमश के सामने आया, वो पूरी शिद्दत से उसके होंठों के ऊपर झुका और इन पंखुड़ी नुमा होंठों को अपने अनाबी होंठों में दबाकर अपनी शिद्दतें उसमें उंडेलने लगा।
दोनों हाथों से उसकी शर्ट को दबोच कर वो आंखें मीच कर रह गई। कितनी ही देर वो इसकी सांसों में अपनी सांसें तहलील करता रहा। एक जुनून था जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सावरी की सांसें उखड़ने लगी। उसके होंठों से अपने होंठों को बुरी तरह उलझाए वो न जाने क्या करना चाह रहा था। शर्ट को झटके देकर वो उसे परे हटा देना चाहती थी, मगर वो तो जैसे आज उसकी जान ही ले लेगा। कभी बालाई लब तो कभी निचले लब को अपने होंठों में कैद करके चूसने लगता, तो कभी दोनों होंठों पे एक साथ अपनी गिरफ्त बना लेता। बेचैन होती वो उसकी शिद्दतें बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं था। कुछ देर बाद इसके होंठों को रिहाई बख्श कर वो पीछे हुआ तो चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। हाथ की पुश्त से अपने होंठों की नमी को साफ करके उसने सावरी के होंठों की तरफ देखा, जो कुदरती शक्ल में आ चुके थे। लिपस्टिक पूरी तरह उसके होंठों से गायब हो चुकी थी और कुछ फैल कर इधर उधर लग गई थी। ये आपने क्या किया? अपने सांसें बहाल करते हुए वो आईने में अपना चेहरा देखने लगी। ये मैंने शोहर वाले अंदाज में अपनी बीवी की लिपस्टिक को गायब किया है। आइंदा अगर अपने होंठों को रंगने का शौक चढ़े तो याद रखना, तुम्हारे होंठों से हर रंग मैं ही उतारूंगा। आप तो दुश्मन है मेरी लिपस्टिक के। वो मुंह बनाकर रह गई। मैं जा रही हूँ। वो वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अपना चेहरा धोकर यहीं आओ, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर क्यों? बाहर फंक्शन है। वो हैरत से उसकी तरफ मुड़ी। बाहर फंक्शन ज़रूर है, मगर यहाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरे जज्बात भड़क चुके हैं और ये तुम्हारे वजूद से ही तस्कीन पाएंगे। वॉशरूम जाकर शावर लो और हाँ, हर पर्दा वहीं पर छोड़ कर आना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे वजूद में बहुत शिद्दत से समा जाना चाहता हूँ। इसीलिए तुम्हारे वजूद से इन फर्जी पर्दों को उतारने का झमेला नहीं पालना चाहता। मगर अल्तमश, बाहर बहुत बड़ा फंक्शन है और यहाँ तुम्हारा शोहर तुम्हारा मुंतजिर है। बस एक बार मुझे तस्कीन दे दो, फिर बाहर जाकर एंजॉय करना। आपकी तस्कीन के बाद मैं इस हालत में नहीं रहती, कहीं भी आ जा पाऊँ। कितने ही घंटे मुझे अपनी हालत को दुरुस्त करने में लग जाते हैं। आप इतने शदीद हैं, मगर आपको ज़रा एहसास नहीं। वो इसकी शिद्दतों का एहसास करवा रही थी, मगर अल्तमश कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। सावरी, जाओ शावर लेकर अपने खूबसूरत बदन को मेरे सुकून के लिए तैयार करो। मैं आता हूँ। उसे अचानक अपनी माँ की बात याद आई, इसीलिए वो उसे वहीं छोड़कर जुनैरा की बात सुनने आ गया। जी माँ, आपको बात करनी थी। ज़ेरिक निगाहों से सबके तमतमाते चेहरे देखता हुआ वो अपनी माँ से महवे गुफ्तगू था। ये किस अजाब को लाकर मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया है? जुनैरा की बात पर वो यकदम खिलखिला कर हंसा। अहमद शाह की बात कर रही हैं? जुनैरा ने खुशमगी नज़रों से उसे घूरा। अल्तमश, ये हंसने की बात नहीं है। अगर मेरा दिमाग ख़राब हुआ तो दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी, फिर हवेली से बाहर जाकर बाप बेटा खेलना। जुनैरा ने उसे सख्त लहजे में वार्न करना चाहा। अरे मेरी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल माँ, क्यों इस पर इतना गुस्सा करती हो? वो बेचारा सिर्फ शादी करना चाहता है। वो एक नंबर का ठरकी मर्द है। ठरकी है। मर्द अपनी पसंदीदा औरत के सामने ही ठरक झाड़ता है। इसकी तरफदारी करना बंद करोगे? तुम्हारे लिए वो सही और मैं गलत हूँ? माँ, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मैं बस उसको ठीक कह रहा हूँ। उसको ठीक कहना मतलब मुझे गलत कहना? ये तो गलत बात है माँ। आप बिला वजह बात को बढ़ा रही हैं। बिला वजह नहीं है। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो इसकी कोई वजह है। तो अब आप क्या चाहती हैं? वो गहरी सांस लेकर अपनी माँ की तरफ देखने लगा। मैं चाहती हूँ तुम उसे इस घर से, इस हवेली से जाने का बोल दो, और बोल दो कि वो अपना ठिकाना कोई और कर ले। माँ, ये हद से ज़्यादा बेमुरवती नहीं हो जाएगी? पहले हम उसे ये ठिकाना दें, फिर उसे ये बोलें कि तुम यहाँ से चले जाओ। हालांकि वो यहाँ रुकना नहीं चाहता था। मैंने इसरार किया था। तो तुमने इसरार क्यों किया था? माँ, अब मेरी थोड़ी सी इज्जत का ही ख्याल कर लें। मैंने अगर मुरव्वत में आकर इन्हें बोल दिया है तो कोई वजह है। वो एक मेजर है, इसकी यहाँ बहुत ज़रूरत है। आप नहीं जानती कितनी सारी चीज़ों को अकेले उसने कवर करके रखा हुआ है। वो यहाँ है तभी मैं सुकून से बाहर जा सकता हूँ, क्योंकि इसके होते हुए कोई आप पर उंगली भी नहीं उठा सकता। तो तुम एक गैर मर्द के भरोसे अपनी माँ को छोड़कर जाते हो। मैं किसी गैर मर्द के भरोसे नहीं छोड़कर जाता। मुझे उस पर बहुत यकीन है। वो हमेशा से हमारे साथ हैं। आप ये सब अच्छे तरीके से जानती हैं। उन्होंने कभी भी हमें नुकसान पहुंचाने या धोखा देने के बारे में नहीं सोचा।
अगर उनकी फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो गई हैं तो इसका मतलब ये नहीं उनका नेचर बदल गया है, वो बहुत ईमानदार हैं। ये आप अच्छी तरह जानती हैं। अल्तमश, तुमने मुझे ये किस मुश्किल में डाल दिया है। मैंने सोचा था आज तुमसे बात करके उसे इस हवेली से दूर करवा दूँ। आप ज़्यादा नहीं सोचें, मैं आपको एक ही मशवरा दूंगा, अपने दिल की बात सुने। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा दिल क्या चाहता है? मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो आप सुनना नहीं चाहती। आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। तुम जानते हो मेरा मकसद शादी नहीं है। उसने अपने बेटे को तनबीही लहजे में वार्न किया। मैं जानता हूँ आपका मकसद शादी नहीं है, लेकिन अगर आपका मकसद पूरा हो जाए, जो कि बहुत जल्द पूरा हो ही जाएगा, फिर आप सारी ज़िंदगी के लिए अकेले रह जाएंगी, तब कोई मकसद भी नहीं बचेगा। तुम हो मेरे साथ। माँ, मैं हमेशा आपके साथ नहीं रहूँगा। एक वक्त आएगा जब मेरी भी शादी हो जाएगी, 1000 जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, आपको देने के लिए वक्त कम होगा, फिर आप अकेलापन महसूस करेंगी, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत होगी। मैं हमेशा से अकेले सरवाइव करती आई हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका कोई मजबूत सहारा हो। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। मैं कभी भी आपको अकेले नहीं देखना चाहता। अपनी माँ का गाल थपथपाता वो दोबारा साबरी के कमरे की तरफ जाने लगा। यकीनन वो तैयार हो गई होगी, अब वो उसके वजूद से सुकून हासिल करेगा। बाथरूम में शावर लेते हुए जैसे ही उसने गुनगुनाना शुरू किया, पल भर में ही उसकी गुनगुनाहट बाहर 400 कमरे में फैल गई। काले जूतों और काले ही लिबास में मलबूस एक वजूद हर तरफ कुछ टटोलते हुए इस आवाज़ को सुनते ही चौंक उठा। हैरत से इधर उधर देखा। ये आवाज़ वॉशरूम से आ रही थी। जैसे ही वो बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा होकर हैंडल घुमाने लगा, तभी अंदर से आवाज़ उभरी, अल्तमश, अल्तमश, टॉवल देना, मैं बाहर भूल आई हूँ। वो कोई लड़की थी जो इस वक्त टॉवल मांग रही थी। उसने इधर उधर नजरें घुमाई तो सोफे के बाजू पर टॉवल लटक रहा था। खामोशी से जाकर उसने टॉवल उठाया। जैसे ही हल्का सा दरवाज़ा खुला, टॉवल उसकी तरफ बढ़ा दिया। अल्तमश, आप कितने शरीफ हो गए हैं ना, टॉवल लेते हुए साबरी ने कमेंट किया। उसकी बातों का नज़रअंदाज करके वो तेज़ी से बेड की साइड टेबल पर रखे जग के पास गया। हाथ में पकड़ी छोटी सी गोली को जग में डाला। इससे पहले कि वो लड़की बाहर आती, वो खुद यहाँ से चले जाना चाहता था। तभी बाहर से कदमों की चाप सुनाई दी। कोई इसी तरफ आ रहा था। खामोशी से वो कमरे से निकलकर एक पिलर के पीछे छुप गया। अल्तमश बलोच इसी कमरे में दाखिल हुआ। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने अल्तमश को इसी कमरे में आते जाते देखा है। हर रात वो इसी कमरे में होता है, तो फिर ये लड़की इस कमरे में क्या कर रही है? वो इंसान कुछ सोचकर ताने बाने बुनने लगा। अल्तमश, आपने मुझ पर इतना फेवर किया तो एक और फेवर कर दें। कमरे में दाखिल होते अल्तमश के कानों में साबरी की आवाज़ गूंजी तो उसे हैरत हुई। इसे कैसे पता चला वो कमरे में आ चुका है? अल्तमश ने दोबारा साबरी की चहचहाती आवाज़ पर वॉशरूम के बाहर आ गया। अल्तमश, हाँ, क्या बोल रही हो? मैं कह रही हूँ आपने मुझ पर एक फेवर किया है तो दूसरा भी कर दें। कौन सा? अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कर लें। मुझे यूँ टॉवल में आपके सामने शर्म आएगी। अच्छा, टॉवल में मेरे सामने आते हुए शर्म आएगी, और जब मेरे सामने पूरी तरह बरहना हालत में होती हो तब? उसके सवाल पर वो खामोश हो गई। तब तो आपकी बेशर्मी होती है। आप मेरे सारे कपड़े मेरे वजूद पर रहने ही नहीं देते। तुम बाहर आ जाओ, ये टॉवल भी तुम्हारे वजूद पर नहीं रहने दूंगा। इसकी बेबाकी पर वो कानों में उंगलियां दे गई। अल्तमश, इस वक्त मेरी बात मान ले प्लीज़। अच्छा ठीक है। साबरी की मासूमाना इल्तिजा पर वो हंसकर आंखें बंद करने लगा, मगर दिमाग में कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अच्छा, पहला फेवर कौन सा किया है? पहला फेवर आपने अभी अभी मुझे टॉवल उठा के दिया और कोई भी शैतानी नहीं की। अच्छा, वो हंसा, मगर अचानक उसे याद आया, उसने तो टॉवल उठाकर ही नहीं दिया। मैंने तुम्हें टॉवल उठाकर दिया? हाँ, मगर कब? अरे अभी अभी, बस 2 मिनट पहले। मैंने आपसे टॉवल मांगा था और आपने बिना कुछ बोले टॉवल उठाकर दे दिया। साबरी, 2 मिनट अंदर ही रहना। लम्हे के 1000वें हिस्से में इसका दिमाग किसी गड़बड़ का साइन दे चुका था। आंखें बंद करने में 2 मिनट लगते हैं, वो हैरत से सोचने लगी, मगर अल्तमश इधर उधर देखते हुए किसी वजूद को तलाश करने की कोशिश कर रहा था। अचानक ही उसकी नज़र फर्श पर नस्ब जूतों पर पड़ी। मिट्टी से भरे ये जूते किसके हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई मर्दाना जूते थे और इसके जूतों पर मिट्टी नहीं लगी हुई थी।
कोई मर्द तो इस कमरे में आ नहीं सकता। इस कमरे में तो सिर्फ नाज़ली आती थी और नाज़ली मर्दाना जूते नहीं पहनती। इसका मतलब साफ था, इस कमरे में कोई और आया था। लेकिन क्या करने? इधर उधर देखते हुए वो कुछ तलाश करने लगा, मगर कोई भी ऐसा सबूत उसके हाथ नहीं लगा जो उसे इस बात की निशानदेही करवा सके कि आने वाले का क्या मकसद था। अल्तमश, बाहर आ जाऊं? साबरी की पुकार पर वो यकदम चौंका। 1 मिनट रुको। इधर उधर हर जगह किसी वजूद को तलाशा, पर्दों के पीछे, अलमारी के अंदर, जहां मुमकिन हो सकता था। खिड़की के बाहर भी देखा, मगर कोई भी उसे नजर नहीं आया। ठीक है, बाहर आ जाऊं। दरवाजे को अच्छी तरह लॉक करके खिड़की को बंद करते हुए उसने सावरी को बाहर आने का बोला। खुद को कंपोज करके वो मुकम्मल तौर पर सावरी की तरफ मुतवज्जा हुआ। जैसे ही सावरी ने वॉशरूम से बाहर कदम रखा, वैसे ही अल्तमश ने अपना रुख इसकी तरफ मोड़ा। सफ़ेद कलर के छोटे से टॉवल में अपने वजूद को ढांपे वो इस वक्त बला की हसीन लग रही थी। दूधिया खूबसूरत नाजुक वजूद से पानी के कतरे फिसल रहे थे। सीने के उभारों पर अटका ये टॉवल उसकी थाइस तक वो मुश्किल पहुंच पा रहा था। चिकनी से डोल पिंडलियां छोटे छोटे गुलाबी पांव फर्श पर रखती हुई इसकी तरफ बढ़ने लगी। अल्तमश का सांस रुकने लगा। हर पांव से अपने दिल पर वजन बढ़ाता महसूस हुआ। ऊपर से उसकी कातिलाना चाल। उफ! लपक के अल्तमश ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ये फाउल है, आपने आंखें बंद करनी थी। मैं कोई पागल हूँ जो इस हसीन मूरत के सामने आंखें बंद करके ऐसे हुस्न को निहारने से महरूम रहूं। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे अंग अंग पर मेरा हक है। उसे आहिस्तगी से बेड पर बिठाया तो सावरी बेड से टांगे नीचे लटका कर बैठ गई। अल्तमश बेड से नीचे उसकी टांगों के पास बैठकर खूबसूरत पिंडलियों पर हाथ फेरने लगा। फिर सावरी के गुलाबी नरम नरम पाँव को पकड़कर इन पर अपने लब रख दिए। अल्तमश, आपको बुरा नहीं लग रहा? आप मेरे पाँव को बुरा क्यों लगेगा? बीवी हो मेरी, फिर भी मेरे पाँव हैं। तुम मर्द की मोहब्बत से वाकिफ नहीं हो। जिस औरत से वो मोहब्बत करता है उसके पाँव चूमने से भी पीछे नहीं हटता। सबूत तुम अपनी आंखों से देख रही हो। दूसरे पाँव पे अपने लब रख कर वो इन खूबसूरत पिंडलियों पे अपना हाथ फेरता, इन्हें अपने लबों से छूता ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। सावरी हैरत से उसकी मोहब्बत को देखने लगी। मन में बेचैनी बढ़ने लगी। घुटनों से ऊपर रानों के मुलायम गदाज हिस्से पर पहुंचकर वो उठकर झुक गया। सावरी लब भींचकर खुद पर काबू पाने की कोशिश करने में हलकान होती बेडशीट को मुट्ठी में दबोच कर लेट गई। अपने होठों से उसकी रानों के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों को छूता वो सावरी को सिसकने पर मजबूर कर गया। थाइज और उसकी गहराइयों को छुपाने की कोशिश करते टॉवल को अल्तमश ने दोनों हाथों से ऊपर खिसकाया तो गहराइयों के हसीन नज़ारे आंखों के सामने आया हो गए। अल्तमश, आप कितने बेबाक हैं। गहरे गहरे सांस लेती वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में बेहाल हो रही थी। अल्तमश ने हाथ बढ़ाकर टॉवल को पूरा खोल दिया और हसीन वजूद पूरी तरह खुलकर उस पर आया हो गया। मेरी छोटी सी बीवी। उसके भरपूर सराबे को देखता वो अपनी शर्ट को निकालने लगा। गहरे सांस लेने के बाद भारी ऊपर नीचे होती धड़कनें मुसलसल अल्तमश के नज़रों के फोकस में थी। टारगेट अधूरा, रोमांस अधूरा। टारगेट पूरा करें, आप लोगों को एक भरपूर हैप्पी मिलेगी।